ये बहुत ही फेमस जगह है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। इस जगह को शेष शैया बोलते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, शेषनाग के सर के नीचे विष्णु जी लेटे हुए हैं। एंड ये मूर्ति कुछ 1000 साल पुराना है या उससे भी पुराना। पानी ऊपर से आता है, बांधवगढ़ फोर्ट से आता है, नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग से पानी निकलता है और नीचे आके यहाँ पे विष्णु जी के पैर से होते हुए नीचे तक जाता है। ये इस जगह का महत्व है और इसलिए इसको, ये पानी का बहाव को चरण गंगा कहते हैं, बिकॉज वो विष्णु जी के चरणों से होते हुए जाता है, तो चरण गंगा कहते हैं। ये पानी बहुत ही प्रिस्टीन है, अमेजिंग है। एंड नीचे छोटे मोटे जो गांव है, यही पानी को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि हमारी जो संस्कृति है, पद्धतियां है, प्रथा है, यहाँ पे दिखता है कि हम लोग कितने प्रकृति से जुड़े हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु जी का वास है और शिव जी का भी वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एंड ये सब मैं भगवान या इसके तुलना पे नहीं जाऊंगा, बट हमारा पूरा संस्कृति जो है बेस्ड है प्रकृति से ही, प्रकृति से लेके ही बेस्ड है कि हमारा जीवनशैली होना कैसा चाहिए, हाउ वी शुड लिव, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये सब इसी पे बेस्ड है। हमारे वेदों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है। हाँ, अभी ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के वजह से हमारा पूरा ये जो है बदल गया है एंड हम लोग भूल चुके हैं कि प्रकृति का वैल्यू क्या है। प्रकृति को बचाएंगे तो हमारा भी लाइफ ज्यादा अच्छा होगा। वापस हम सुमेश जी के साथ हैं एंड अगेन सुमेश जी, thank you so much for bringing me here. This is a beautiful place. My pleasure. I know you like it. Yeah. See, I have a few rapid fire questions for you. Sure. So you cannot, it's like one word or maximum one sentence answers. ठीक है, फटाफट आपको बोलना चाहिए। हाँ, मैं करण जौहर हूँ नहीं, लेकिन आप रैपिड फायर करो। Current जौहर हो। Say that again. आप करंट जौहर हो। हमारी जिंदगी में प्रकृति का क्या मायना है? What is the importance of nature in our lives? Are we there? If nature is not there, what will happen to us? See, this very well said that nature is mother. We all come from nature. We've evolved from nature. As far away as nature, the human life is moving towards, we are seeing a lot of health issues coming up. We are seeing natural disasters coming up. We are forgetting the ancient knowledge which we had to survive. We are depending more on artificial means. We are depending more on medicines. We are forgetting what a lot of ancient cultures, India included, has in its basic history. You know what we have really learnt. So at some point we have to go back to nature. We have to appreciate what nature has given us. Like even we have come to this location. I was hearing you talk. Now you have Brahma, Vishnu, and Shivji. So this is called Sesh Saya. You know, where you have all the three deities. Now again, that's mythology. But it's my experience that in our country, we have 17%, going towards 18% of the world population in only 3% of the space. But still, we have so much wildlife, we still have forests left, we still have respect. Even an elephant dies in Assam, they do puja, they revere it, they respect it. You travel across the world, such big forests they have, but still I feel that they're devoid of the ancient forests, Europe, the American, the North America, they're devoid of the ancient forests they had. So a lot of the original species have in a way disappeared. So in that sense, I feel that India is still very blessed. We have lots of forests, we have lots of mountainous areas. Some of the biggest rivers, pristine water comes from these forests. So these have to be protected. And going forward, water is going to be the biggest crisis. If we do not respect and conserve our forests, you can rest be assured water is already disappearing. We are already tapping water from ground resource
groundwater resources, which is completely disappearing. So there we talk about forests are important, oxygen. People find it very, at one time when I would speak about clean air, air pollution, people found it funny. But eventually I'm seeing even in our inventions, in what we do, in technology, a lot of inspiration is being taken from nature itself. So at some point, I think humans are losing their basic instinct. We have that instinct from nature. When we come to jungles, if you've realized, we can go by with less sleep, if you've noticed. We are in touch with our own inner self. We go back with very refreshed. That's because we are in nature. This is what our natural calling is. So at some point we have to respect nature. Otherwise this will continue. Natural disasters will continue. Flooding is going on everywhere across the world, across the country. Seasons are changing. Crop patterns are changing. Crops are failing. In fact, where we come from, in certain areas of Maharashtra, crops have failed. 90% crops have failed because of unseasonal rain. Go to mango, completely failed because of unseasonal rain. So it's becoming quite a crisis. So सुमेश जी का ब्रेव एज फिल्म्स करके कंपनी है जहां पे वाइल्ड लाइफ पे मूवीज बनाते हैं. अगर आपको मूवीज पे इंटरेस्ट है, इनका अभी 3 मूवी रिलीज हुआ है, तीनों एपिक 1 चैनल पे है. बैस्टियन ऑफ द जायंट्स हाथियों पे. This is the story of the Asian elephant and the biodiverse northeastern jungles of India, where they still survive. Pushed to the edge of existence, they now cling to survival in isolated pockets across Asia. One such ecosystem is Kaziranga National Park, part of the floodplains of the mighty river Brahmaputra, and one of the last bastions of the giants. It is a treasure house, Noah's Ark on Earth. This is the story of how a nation and its people that have revered the elephant god Ganesh through the ages will have to rise up to the task of protecting these last remaining giants, the jungles they roam, and the remarkable wildlife in them. एमरल्ड फॉरेस्ट, पन्ना वाइल्ड लाइफ रिजर्व, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. वहां पे आपको टाइगर्स के बारे में, उनका स्टोरी के बारे में. पन्ना जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व, पूरा शेर विलुप्त हो गया था टाइगर रिजर्व से. उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया. अभी कुछ 60-70 टाइगर्स है. अमेजिंग जर्नी. वो जर्नी आप देख सकते हैं एपिक चैनल पे, एमरल्ड फॉरेस्ट. इन सब मूवीज का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. आप लॉग इन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. सुमेश जी, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका एक और मूवी था वेटलैंड्स, मिरेकल्स ऑफ मुंबई, शायद. ब्यूटीफुल मूवी. अब पहले मैंने आपका हाथियों पे पिक्चर देखा, फिर शेरों पे पिक्चर देखा. सडनली आप मुंबई में चले गए. उसका कारण क्या था? वो व्हाट वाज बिहाइंड दैट होल मूवी? एक्चुअली हम लोग मुंबई में काफ़ी कंजर्वेशन का काम करते हैं. तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतने लोग की आबादी है, फिर भी ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है, जहाँ पे अभी भी वाइल्ड लाइफ है, फ्लेमिंगोज है. तो हमें लगा कि इस किस्म का अगर फिल्म ऑडियंस तक पहुँचे कि वेटलैंड्स, अगर ऑडियंस फ्लेमिंगोज देखे, मुंबई के जो ग्रीन स्पेसेस देखे, तो उससे क्या एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है. तो हमने एक तो पन्ना स्टोरी बताया, जहाँ पे पन्ना में जो टाइगर्स थे, जब हमको कैसे वापस लाया गया, मूर्ति सर आए, पूरा हमने स्टोरी रिसर्च किया. हमने उसके ऊपर 2 फिल्म्स बनाए. मगर उसके साथ हम चाह रहे थे कि हम एक अर्बन एरिया में, मुंबई जैसे जगह में हम लोग दिखाए कि यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ है, कंजर्वेशन स्पेसेस है, मैंग्रोव्स है, लोखंडवाला, मलाड, ऐसे जगह मैंग्रोव्स है. सो विद दैट फिल्म वी हैव वर्कड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वी हैव बीन एबल टू गेट वेटलैंड स्टेटस फॉर लॉट ऑफ दोज एरियाज एंड वी हैव saved it from destruction to a great extent.
तो एज अ लॉयर हमने PILs भी किए हुए हैं. तो जस्ट टू शो एक्सट्रीम्स. एक पन्ना का स्टोरी था, उस पर हमारे 2 फिल्म्स थे, और फिर एक हम वही टाइम पे हमने मुंबई के बारे में फिल्म रिलीज की. आप जरा बताएं सुमेश जी, आपके अगले फिल्म्स के बारे में कुछ सिंपल सा बताइए ना, अपकमिंग फिल्म. हम लोग 5 साल रिसर्च कर रहे हैं तड़ोवा में, तो हमने 4 टाइगर फैमिलीज को फॉलो किए हुए हैं. तो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स, जो स्पीशीज़ के अराउंड जो इंटरप्ले चलता है, जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स है. वी आर शोइंग तड़ोबा इन अ वे विच प्रॉबेबली अ टाइगर रिजर्व शुड बी शोन, यू नो, विथ बाकी जो स्पीशीज़ है, स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ से लेकर यू नो ऑल द वे टू द टाइगर, जो आपके फ्लैगशिप स्पीशीज़ है. हमने उसको पूरा कवर किया है हैबिटेट के हिसाब से. टाइगर्स के अलग हंटिंग स्टाइल हमने दिखाया है. दिस शुड बी आउट सून. प्लस हम बाकी भी सेंट्रल इंडिया में हम लोग और 3 फिल्म बना रहे हैं. दैट वी आर प्लानिंग मे बी बाय 2022. लेट अस सी हाउ दैट गोज. प्लस अभी हम, सिंस आई हैव शिफ्टेड माय बेस टू लोनावला राइट नाउ, आई एम स्टेइंग देयर, सो वी आर वर्किंग ऑन अ फिल्म ऑन द सह्याद्रीज, on the wildlife in the सह्याद्रीज, macro snakes, we're talking about frogs. तो अभी आप सह्याद्री की अगर बात करें, अभी आप देखिए, अभी आप एक बात, चलिए सह्याद्री अपने जगह पे, अभी भले ये जो है मैन मेड है, मगर देखिए इफ नेचर इज लेफ्ट अलोन, हाउ नेचर टेक्स ओवर. लुक एट दिस, मॉस है, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फर्न्स है, मगर आप भी वही करते हो. आई हैव नोटिस्ड, आप छोटे से एक एनवायरनमेंट में आप जितना भी कर सकते हैं, यू क्रिएट अ नेचर सिस्टम इन इट्स ओन. In fact, I think you should talk a little bit of your nature systems. So, आप लोग ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हो एंड यू नो कि हम लोग क्या करते हैं. कुदरत को हम वापस घर में लेके आते हैं. ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड अ पैलोडेरियम. ओके, जब किसी ने भी बनाया, जो राजा महाराजा ने बनाया होगा, उन्होंने यहाँ पे मंदिर जैसा बनाया, सामने पानी डाला है. बट बिकॉज ऑफ द ट्रीज एंड जो पानी फ्लो हो रहा है, दीवार पे पानी फ्लो होने के वजह से आपके पास फर्न्स है, एंड मैं पास में दिखाऊंगा, मॉस है, एक्वाटिक मॉस है, मोरोसोरियम पेट्रोपस या जावा फर्न है. बहुत अलग किस्म के फर्न्स है एंड नेचुरली ग्रो हो रहे हैं. कुछ किसी ने कुछ लाया नहीं, डाला नहीं, कुछ नहीं. तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि आप सिंपल सा एक पैलोडेरियम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स सुमेश जी, आपके सामने कुछ नहीं. आई वुड यू नो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपके वजह से ये अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं मेरे को ये नेचुरली देखने के लिए. तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग. My pleasure. मेरे मन में ये था कि क्यों ना, अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो अपना लाइफ या करियर वाइल्ड लाइफ पे बेस करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ मूवी मेकिंग या जो भी है, यू नो, समथिंग विद कंजर्वेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उन बच्चों को यहाँ पे लेके आए एंड फर्स्ट हैंड उनको शेरों के बारे में, हाथियों के बारे में सब कुछ आप समझा सके? क्या विल यू बी ओपन टू दैट सुमेश जी? Teaching the next generation has always been our focus. अगर हम लोग समझो शेड्यूल कर रहे हैं, तो we can definitely dedicate, you know, some time to the children. Maybe we can give them an orientation, and उनको हम ले जा सकते हैं जंगल में, and you know, make them see the jungle holistically, different true way, different elements. आप बोलो grasslands है, woodlands है, उसके आगे जैसा भी इधर भी अगर आप देखेंगे, क्लिफ्स है, रॉक्स है, हाउ स्लॉथ बेयर हैबिटेट वगैरह उनको बता सकते हैं. तो क्या उनके एक माइंड में, दे जस्ट डोंट कम आउट as if they come out of a zoo or a tourism. They come out with a much more holistic view of whatever is happening. Definitely, it will be a pleasure. I mean, working with children, I've always found them to be extremely, like, we were filming with the Pardhi children. हम पन्ना जब स्टोरी कर रहे थे, तो एक ट्राइब है पारधी करके, which are known, I mean, that is their way of life. वो जंगल से एनिमल्स भी पोच करते कभी कभी, मगर वो काफ़ी रिफॉर्म हो चुके हैं ये टाइम पे. और जब मैं स्कूल में गया था, लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन ने उनके लिए स्कूल्स में दाखिला किया हुआ है, और ये बच्चों में जो आंखों में जो स्पार्कल था एनवायरनमेंट के बारे में बात कर, नेचुरली हमारे अंदर, हमारे DNA लेवल पे नेचर्स इंग्रेन्ड, बट समवेयर अलोंग द वे वी स्टेरलाइज लाइफ टू मच. बच्चा कुछ हाथ लगा तो मत हाथ लगाओ, यू नो, कुछ ये हो जाएगा, बेटा ग्रास पे मत बैठो, पेड़ पे मत चढ़ो. दैट्स अ न्यू जनरेशन टुडे. वी हैव टू गेट देम बैक टू बेसिक्स. दैट्स व्हाई इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम, हेल्थ कम्स फ्रॉम, a great attitude of gratitude comes from. जब यहाँ पे आके देखते हैं, plus on safari they learn patience to a great extent. I've seen friends, I've seen children to a great extent learning to be patient, to appreciate being in the now.
आज के ज़माने में चैलेंज क्या है? हाउ डू यू टेक द चाइल्ड्स माइंड आउट ऑफ अ डिवाइस और अ गैजेट एंड so that they are not in a place, a device or a gadget takes them somewhere else. How do you bring them in the now, in the moment? And I think a safari, a wildlife trip is a great way of bringing children to be in the now, to be in touch with the environment, the sounds, the smells, the visuals. Definitely we can plan it. Why not? Amazing. One last word of inspiration कि watcher viewers को आप क्या बोलना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ सफारीज के बारे में? Anything that you want to say, something inspirational. आप मुझे इंस्पायर करते ही रहते हैं, ओके? एंड योर आई कीप सेइंग यू आर लाइक माय कॉन्शियंस. आप सही गलत बताते रहते हैं हमेशा मुझे. मैं ऑफ कोर्स मैं पूछता हूँ, फिर भी आप कुछ देखा आप बताते हो, तो पब्लिक के लिए भी कुछ अच्छा. मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सपोज करें नेचर के तरफ, जैसे भी आपको करना है. ब्रिंग देम टू नेचुरल स्पेसेस. अगर आप सिटीज़ में रहते हो, उनको पास में, जैसे बॉम्बे में हमारे पास कितने हैं, दिल्ली के पास कितने जगह है, टेक देम आउट टू द विल्डरनेस, टेक देम फॉर एडवेंचर्स. आवर किड्स हैव बीन गोइंग आउट फ्रॉम द एज ऑफ 2-3 months टू जंगल्स. आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक योर किड्स आउट, शो देम द विल्डरनेस, शो देम हाउ ब्यूटीफुल अर्थ इज, हाउ ब्यूटीफुल आवर प्लैनेट इज, और उनको ये चीज़ बोल के रखिए कि ये आपकी जगह है. Learning is very important, but in today's time, the most pressing matter on planet Earth is to save the environment. There is no other way we can pass on any kind of legacy to the next generation. So, again, Sumesh ji, thank you so much for this interview. Thank you so much for, again, मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया आपके साथ ये ट्रिप स्पेंड करने के लिए. We had some wonderful sightings. Female tigress with children, with cubs, beautiful sightings, amazing, and lot of things to learn. For the first time I've got to see that how a hornet And beetles forage together. that मैं अपने लाइफ में मैं कभी देख नहीं पाता, but thanks to you, that was amazing. You want to say something, sir? अभी सोचिए, वो वक्त में हम लोग मेल टाइगर के लिए वेट कर रहे थे, और तभी हमने नोटिस किया, आई नोटिस कि दिस एक बीस जो है वो एक जगह जो है वो मिनरल्स, सॉरी नॉट बीस, बीटल्स जो है एक जगह मिनरल्स है वो सब कलेक्ट कर रहे, और वो टाइम पे हॉर्नेट आया है. सो आफ्टर दैट फैंटास्टिक मेल टाइगर साइटिंग व्हिच वी हैड, वी इमीडिएटली केम बैक कि वो वापस वो पेड़ में चलो. सो इफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग, दे आर अवेयर, दे आर इन ट्यून. या प्लीज. I mean, thank you so much again for all the insight and support and everything. मैं आपके तरफ से भी सुमेश जी को बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि he was gracious enough to talk to us, spend time with us, and आपको भी बहुत सारा information knowledge. अगर आप सुमेश जी से कांटेक्ट करना चाहते हो तो braveagefilms.com, करेक्ट सर? उसमें जाइए एंड वहाँ पे पूरा डिटेल वगैरह है, उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, उनके साथ संपर्क बनाए रख सकते हो, सीख सकते हो. सिंपलर इज सुमेश लेकी, ट्विटर में भी है सुमेश लेकी, इंस्टाग्राम में भी है, एंड सुमेश लेकी ब्रेव एज फिल्म्स आपको यूट्यूब में भी मिलेगा. आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट टू योर ऑडियंस. थैंक यू सो मच. एंड मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला एंड समझने को मिला और एंजॉय किया आपने. सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, सुमेश जी की तरफ से, कैमरामैन सुबिन की तरफ से, एंड आई एम श्योर हमारे पूरे बांधवगढ़ टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है. एंड इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि हम इंसानों ने, फैन आया, एसी आया और हम भूल गए पेड़ के नीचे छांव में कितना सुंदर हवा आता है. ठीक है, कार आया, गाड़ी आया, बाइक आया, हम चलना भूल गए. ठीक है, ऑफ कोर्स फास्ट फूड आए, हम अच्छा खाना भूल गए. सो गो बैक टू योर रूट्स, अपने जड़ों को ढूंढो, सी व्हाट वाज एक्चुअली हाउ योर, आपके पूर्वज कैसे रहते थे. देखो लाइफस्टाइल्स बहुत ही अमेजिंग है. यू डोंट नीड आईपैड, यू डोंट नीड आईफोन्स, कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ without all this technology. You can enjoy yourself and please safaris पे आओ,
सुंदरता देखो, मजा लो. Okay, and of course support our forests, support our forest people, people living in the forest. All these people are working to give you a very beautiful experience. ठीक है? So as always, bye, मिलते हैं, टाटा, okay, sir. So, bye to the audiences. It was a pleasure and conversation, and the kind of journey we went through in the last few hours, the last few days, what we are doing. And I'm so happy we had a chance to spend time together, and look forward to you all spending more time in nature, in the jungle. Start questioning your parents. Tell them to be more environmentally conscious and step out more and be adventurous. Take care.